Be quiet and listen to me carefully. Have you completed the chapter structure of atom? Yes. You started it. What have you done in it? What topics have you covered? Have you done Thomson and Rutherford model? Yes. Okay, fine. Tell me what is Thomson atomic model? Tell me what is Thomson atomic model? Thomson model, another will tell me Rutherford model. Center row, last bench. You hear me? Middle row, last bench. Girls, please get up. I've repeated 10 times at least now. Please come forward. Unmute your mic and tell me what do you know about Thomson model. Unmute your mic. आपका mic off है. Yes, ma'am. Thomson model के बारे में जानते हो क्या? Ma'am, we have studied watermelon model. Watermelon. बोलो. Yes, ma'am. That gives the structure of atom that the positive charge is over on the atom and the negative charge is like the seeds of the watermelon. Your voice is not audible. Hello. अभी ठीक है. It is also called watermelon model or plum pudding model, in which they assume that the center, the positive charge is uniformly distributed and the negative charge is embedded on it. But actually, this model is not completely correct. जो अभी हम लेटेस्ट बोहर मॉडल कर रहे हैं, इससे भी लेटेस्ट कर रहे हैं एक्चुअली प्लैंक्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. तो इसके बाद वाले जितने भी मॉडल्स आए थॉमसन के बाद वाले, उन्होंने ये नहीं बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, इन्होंने ये बोला जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर में कंसंट्रेटेड है, जिसको आप न्यूक्लियस बोलते हैं. लेकिन जब थॉमसन मॉडल आया था
किसी ने उसको ऑब्जेक्ट नहीं किया, उनको नोबेल प्राइज भी मिला। और उसके बाद उनकी डेथ के बाद फिर रदरफोर्ड ने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और उसके रिजल्ट्स जो थे वो सही थे, पर थोड़ी थोड़ी उसमें एक्सप्लेनेशंस लैकिंग थी। पर थॉमसन मॉडल एक्चुअली करेक्ट नहीं है अभी जो भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम कंसिडर करते हैं उसके अकॉर्डिंग। सो आप ही के साथ में डल रो लास्ट बेंच पे जो साथ में स्टूडेंट थे, मैंने कहा था आप रदरफोर्ड के बारे में बताएंगे, प्लीज कम फॉरवर्ड। What do you know about Rutherford? Okay, what else? Why do you speak so much? हाँ जी बेटा बोलो। The positive charge consists in the center. And what about negative charge? Where is it present? It revolves around the nucleus. It revolves around the nucleus. ठीक है। Now take out your assignments. Take out your assignments. We start with boys. So your first question in the assignment is, Rutherford designed an experiment to determine the structure of an atom. Disturbance from the class. Boys, आपकी अगर गॉसिप्स खत्म होगी, कैन वी स्टार्ट? I'm waiting. कब तक आप बात कर सकते हो ऐसे? Yes. जो भी फर्स्ट पेज है बॉयज जिसमें बैठे हैं वो फर्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा, because I can't see him. So the first question is, name the element he selected for the purpose and why. We are talking about Rutherford experiment. Yes. What was the element he selected for this purpose and why? No worksheet. Oh, fine. Listen to me carefully, then you'll be able to hear if you keep quiet. I dictated the question also. You are not listening to me. The question is, Rutherford designed an experiment to determine the structure of an atom. Answer the following in relation to this experiment. So the first equation is about Rutherford experiment, in which looking for the element. The element Rutherford selected for the purpose and why. Yes, please, boys, first bench. Come forward and answer. Boy, first bench. Yes. Hanji beta, name the element he selected for the purpose and why did he select it? Ma'am, gold. Why did he select it? Ma'am, because it is very malleable. Very malleable. Okay. So what did he do with it?
He passed a beam of electro radiation. Which radiation? Alpha particles. What are alpha particles? What charge do they carry? Ma'am, positive. Positive charge. So what happened after that? चलो बैठो. So he selected gold foil. Gold foil is very malleable. Gold is very malleable, so it took a thick strip of gold foil, which was about 1,000 of selected gold foil because gold is metal. Okay. Particles were used by him. And the next student, which subatomic particles were used by him? Next student, please come forward. Yes, beta. Which subatomic particles were used by him? Did you answer it? I didn't hear. पता नहीं मैडम. पता नहीं. अभी आपसे पिछला स्टूडेंट ही बता के गया था. आपने सुना नहीं था? Were you busy talking? You are not visible to the teacher. So you must be. तो बेटा जब कोई आंसर कर रहा होता है आपको भी ध्यान से सुनना है. अगर आपको आंसर नहीं आता एटलीस्ट तब तो बिल्कुल ध्यान से सुनना है. अगर आता है तो चलो एटलीस्ट आप चुपचाप बैठ सकते हो. क्योंकि मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ लास्ट 15 मिनट से प्लीज बी क्वाइट एंड नाउ प्लीज लिसन केयरफुली. गो एंड सिट. देखो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जैसे कि पिछले स्टूडेंट ने भी बताया था जिनको स्ट्राइक करवाया गया था दे वर अल्फा पार्टिकल्स. ठीक है. जो कि डबली चार्ज हीलियम पार्टिकल्स हैं. अल्फा पार्टिकल्स और He2 पॉजिटिव पार्टिकल्स. ठीक है. पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स and they have mass of U. atomic mass helium का 4 होता है तो उसका mass 4U हो गया and they are very fast moving particles and they are highly energetic. ठीक है. Fast moving energetic particles which are made to strike the gold foil. Okay. Okay, next student, please come. Can you tell me Rutherford ने observe क्या किया था जब ये experiment करवाया था? What did he observe? थोड़ा सा इधर और साइड आओ और tell me, do you know what is Rutherford scattering experiment? जो पिछले 2 स्टूडेंट्स बता के गए हैं जिसके बारे में बोर्ड पे लिखा हुआ है. Do you know what is that? Please tell. No, alpha is not possible.
किस में से? thin gold on a sheet. हाँ जी, मैं thin gold on a sheet. thin gold sheet किसने पास कराई है? मैं बात हाँ जी, बोलो, जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया। मैं अल्फा रेज पास थ्रू मैं गोल्ड on a sheet. अल्फा रेज करवाए पास, ठीक है, मैंने कहा किसने करवाया ये? Being the scientist, उन्होंने ये क्या था? क्या पढ़ा आपने अभी तक इस चैप्टर में? चलो बैठो, नेक्स्ट अपने नेक्स्ट जो भी है। हाँ जी बेटा, किसने करवाया एक्सपेरिमेंट? रादरफोर्ड ने। क्या करवाया उन्होंने? Alpha particle passed from thin gold foil and then strikes at the screen. What did he observe? Some of the particles directly reflected and some of the particles passed and strikes on the screen, and one of the tenth of the particles comes back. Okay, very good. Please sir. देखो, ये कह रहा है कि जो गोल्ड फॉइल है alpha particles strike कराए तो many of them या most of them they pass straight away, ठीक है। कुछ थे पार्टिकल्स जो कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे और कुछ थे पार्टिकल्स जो कि स्ट्राइक बैक कर रहे थे, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशंस थी जो मैं आपसे ऑब्जर्वेशंस पूछ रही थी, ठीक है। तो दीज आर ऑब्जर्वेशंस that most of them they passed, some of them deflected, and a few, very few, 1 out of 10,000, they strike back. Right? These three were observations. Now, next student, आओ जरा. Next student. अब ये जो three observations थी, what can you conclude from this? क्या conclusion है आपके atom के structure के बारे में according to these three observations? Atoms of gold has free spacing. Okay. कौन से वाले points के लिए deflect, pass और strike back? Pass. Pass. That means there is a lot of empty space in an atom. Okay. Next. Conclusion. हाँ जी. Yes, बेटा बोलो. What? हाँ? Please ask a question. Okay. मेरा क्वेश्चन है ये जो ऑब्जर्वेशंस थी, थ्री ऑब्जर्वेशन, पहले तो ये बता दें खुश क्यों हो तुम, अच्छा लग रहा है तुम्हें आंसर देना, थोड़ा सा इधर आ जाओ मुझे, आई कैन सी यू। हाँ ठीक है, वेरी गुड। चलो अच्छा अब बताओ, थ्री ऑब्जर्वेशंस थे, इससे कंक्लूड क्या कर सकते हो आप? Some particles go straight, some deflect, and some one of that strike back. So these were observation. I'm asking for the conclusion. इससे आपने क्या कंक्लूड किया, साइंटिस्ट ने क्या कंक्लूड किया एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कि क्या हो सकता है अगर ऐसा ऑब्जर्वेशन? Have empty space. Empty space is done. Second observation. खाली है बस और कुछ नहीं है एटम के पास. Their nucleus is too small. वेरी स्मॉल न्यूक्लियस, इसीलिए वो कौन से वाले ऑब्जर्वेशन से आप बता सकते हो कि न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल? स्ट्राइक बैक, क्योंकि बहुत कम में स्ट्राइक बैक कर रही थी, तो इसने बोला कि उसका बहुत स्मॉल साइज न्यूक्लियस है जो कि सेंटर में कंसंट्रेटेड है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड भी है, सारी बहुत मास है उसके अंदर, जिसकी वजह से वो एकदम उस रे को उसी के पास पे रिट्रेस करवा दे रहा है, वहीं से डिफ्लेक्ट करा दे रहा है, ठीक है।
And what about third conclusion? सोचो, डिफ्लेक्ट अगर कर रहे हैं तो क्या क्या उसे कंक्लूड आप कर सकते हैं कि क्यों डिफ्लेक्ट कर रहे होंगे, वो रीजन पता है? अच्छा, मैं आपको हिंट देती हूँ, आप उसको कोशिश करना, ठीक है? आप बताओ, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, ठीक है। और जो रेज आपने स्ट्राइक की है उस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, ठीक है। जो अल्फा रेज आपने स्ट्राइक की है वो भी पॉजिटिव चार्ज है। और चार्जेस की इंटरेक्शन के रूल पता है कि सिमिलर चार्जेस डू दे रिपेल ईच अदर और डू दे अट्रैक्ट ईच अदर? रिपेल ईच अदर। तो मतलब ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से कुछ रिपल्शन होगी, तभी वो डिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है। कौन सा पॉजिटिव? न्यूक्लियस का पॉजिटिव और अल्फा रेज का पॉजिटिव। इन दोनों पॉजिटिव चार्ज की वजह से कुछ रिपल्शन हुई होगी, जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट कर गया। डन? अब पता लगा थर्ड कंक्लूजन? अब याद रखना, ठीक है। चलो, वेरी गुड, बैठो। हाँ जी, प्लीज नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाओ। हाँ जी, चलो। What was the drawback of Rutherford model of atom? Can you tell me क्या drawback था उनका? Ma'am, it don't show the stability of Stability of the atom. ठीक है, पर आपको एक्चुअली समझ आया है कि कैसे वो स्टेबिलिटी नहीं बता पाया? ऐसा क्या था कि उनको नहीं पता था, या कैसे वो स्टेबल नहीं है, ये कैसे आप बोल सकते हो? Just tell me, अगर आता है ठीक है, ये तो आंसर तो ठीक है, अगर मैं इतना पूछ रही हूँ तो दैट इज फाइन, बट डू यू एक्चुअली नो कि क्यों नहीं बता पाए थे, वो क्या प्रॉब्लम थी, क्या वो नहीं आंसर कर पाए थे? अच्छा, ठीक है, बैठो, फिर मैं बताती हूँ, पर बाकी सब भी ध्यान से सुनना, आप भी ध्यान से सुनना, आपसे भी वापस पूछ सकती हूँ, ठीक है, कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में ही आ जाएगा। ठीक है, तो जो रदरफोर्ड ने ये ऑब्जर्वेशन की और जो कंक्लूजन निकाला, उससे उन्होंने अपना एक, वैसे उन्होंने कोई मॉडल नहीं दिया था, एक्सपेरिमेंट ही किया था, मगर फिर भी एक पिक्चर जो एक मॉडल की बनती है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, वो ये थी कि सेंटर में न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे बाहर घूम रहे हैं, पर उनको एक्चुअल पाथ नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, ठीक है। तो मैक्सवेल नाम के एक फिजिसिस्ट थे, उनकी थ्योरी ये थी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल कौन सा, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल है, तो ये कहता अगर कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे घूम रहा है या कह लो एक्सिलरेट कर रहा है, तो कहता धीरे धीरे उसको अपनी एनर्जी लूज करनी चाहिए। जैसे सपोज आपको मैं अगर एक ग्लास ग्लूकॉन डी पिला दूं और मैं बोलूंगी अब तुम्हें बहुत शक्ति आ गई, चलो ग्राउंड के 10 चक्कर काटो, ठीक है, बड़ा सा ग्राउंड है, तो आप इनिशियली तो फिर भी घूमते रहोगे, लेकिन धीरे धीरे आप एनर्जी, आप एक ग्लास ग्लूकॉन डी से 10 चक्कर नहीं लगने वाले हैं, ठीक है, आपकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती रहेगी, ठीक है। तो वैसे ही इसमें मैक्सवेल ने बोला कि अगर एक चार्ज पार्टिकल कभी ऐसे एक्सेलरेशन करता है, ऐसे अगर वो चक्कर लगाएगा तो वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी लूज करेगा, और अगर ऐसा होगा तो धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन जाके न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैटर खत्म हो जाएगा, एटम खत्म हो जाएगा, ठीक है, एटम खत्म, मैटर खत्म, तो यूनिवर्स ही खत्म, पे तो हम होंगे ही नहीं, सब कुछ ही खत्म, ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो जो मैक्सवेल ने ये ऑब्जेक्शन लगाई कि चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट करेगा इट शुड लूज एनर्जी, और अगर वो एनर्जी लूज करेगा उस हिसाब से तो आपका एटम कोलैप्स हो जाना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं हुआ, तो एक्सप्लेन करो क्यों नहीं हुआ। बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन, दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। लिखो, एक लाइन लिख लो।
According to Maxwell, when charged particles in circular orbit undergoes acceleration it radiates energy. But if electron does that, it would fall into nucleus and collapse. ठीक है, so last line लिख दो. Rutherford could not explain why this does not happen. ठीक है, तो वो नहीं बता पाए थे कि ऐसा क्यों होता है और एटम क्यों कोलैप्स नहीं करता, वो कैसे स्टेबल है. ठीक है, वैसे आपको इसकी एक बात बताती हूँ कि रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे, इसीलिए फिर बोहर आया था. और बोहर ने क्या कहा था, रदरफोर्ड का जैसे मैंने आपको मॉडल का सेक्शन बताया तो मैंने ऐसे ड्रॉ किया. ठीक है, तो पता नहीं था कि वो घूम के कहाँ जा रहे हैं. तो बोहर ने कहा ठीक है, सेंटर में न्यूक्लियस है, साइड शेल्स है, फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव चार्ज जितने जोर से होल्ड कर रहा है उतना ही इसको बाहर गिरने वाली फोर्स है. जैसे इसको अट्रैक्शन होने वाली फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो बाहर वाली फोर्स है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो क्योंकि ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा अपने पाथ पर ही चलता रहता है, एनर्जी लूज नहीं करता. जैसे अगर हम मान लो एक किसी थ्रेड से बॉल को टाई करके ऐसे ऐसे अगर घुमाते हैं, तो जब तक मैं इस रिस्ट पे पूरा जोर लगा के रखूंगी वो बॉल पूरा सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमता रहेगा. वो हुई सेंट्रीपिटल फोर्स. जो मेरा हाथ लगा रहा है, मेरा हाथ जोर लगा रहा है ना उसको सर्कल में रखने के लिए, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है. अगर मैंने अपना जोर छोड़ दिया, ऐसे हाथ खोल दिया, वो बॉल दूर जाके गिरेगी. वो कौन सी फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है, तो जब तक ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं तब तक वो अपने रास्ते में ही घूमता रहेगा, ऐसा बोहर ने बोला था, और उसी वजह से उनका मॉडल आया था नेक्स्ट. और उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल है, और इसीलिए एटम स्टेबल है क्योंकि उसकी दो फोर्सेस बैलेंस होती हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने रास्ते में, अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है. जस्ट लाइक सोलर सिस्टम जिसमें सेंटर में सन है और जो प्लैनेट्स हैं वो अपने रास्ते में घूमते रहते हैं. नहीं तो फिर ऐसे तो प्लैनेट्स भी घूम घूम के गिर सकते थे. ठीक है, तो उन्होंने बोला नहीं कि अपने ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं. ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाओ पहले. अच्छा, अब बताओ. क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट ऑब्जर्वेशन इन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेड टू रदरफोर्ड
to make the following observation, जो मैंने पहले आपको लिख के बताया था। उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन से ये कंक्लूड किया that most of the space in atom is empty? कैसे कंक्लूड किया उन्होंने कि बहुत सारा स्पेस एटम में एम्प्टी है? आपको पता है रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? तो क्या बोला? हमारे आगे जितना भी है, हम जब से क्लास स्टार्ट किए तब से वही पढ़ रहे हैं। आपने कुछ भी नहीं सुना तब से, जब से मैं बोल रही हूँ या बच्चे आंसर कर रहे हैं, कुछ भी नहीं सुना। बोलो, कितने बच्चों ने बताया रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? आप नहीं सुन रहे थे? मैंने पहले ही आपको बोला था कि ध्यान से सुनो, सबके लिए बोला था। वो जो भी मैं बोल रही हूँ आप ही के लिए बोल रही हूँ, मुझे तो आता है बेटा। बैठो और ध्यान से सुनना। अभी नेक्स्ट स्टूडेंट को सेट करो। आपको आता है बेटा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट? रदरफोर्ड ने मैम कहा था जब हम एटम है उनके लिए स्पेसिस के रेस से निकल जाती हैं, पास कर जाती हैं। अच्छा, आप इसको आंसर में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? कुछ बता सकते हो एक लाइन इंग्लिश में कि आंसर में क्या लिखोगे? बोलो। बोलो बेटा, ट्राई करो। क्वेश्चन है कि उसने ये ऑब्जर्वेशन कौन सी ऑब्जर्वेशन पे बेस कंक्लूड किया that most of the space in atom is empty? How did he conclude it? So what was the observation? He observed that I observed that the rays passes between the atoms. yes, most of the rays they went straight away. ठीक है, they passed through the atom easily. Most of them they passed through the atom easily. Fine. देखो, आपको आना इनफ नहीं है, आपको मार्क्स उसी के मिलेंगे जो आप लिखोगे। तो जो बच्चों को थोड़ा सा आंसर फ्रेम करने में प्रॉब्लम होती है लेकिन समझ आया होता है, वो एटलीस्ट लैंग्वेज थोड़ा सा लर्न करे, है ना, कि आंसर कैसे लिखना है। क्योंकि आपको बस क्वेश्चन की लैंग्वेज, पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में कोई खास फर्क नहीं है, एक ही चीज पर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, बट द थिंग इज द वे यू राइट द आंसर। चलो बैठो, गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट को भेजो। यस बेटा, सेकंड पार्ट में है। तो क्वेश्चन है व्हाट ऑब्जर्वेशन इन अल्फा scattering experiment led Rutherford to decide that nucleus is positively charged? Not because alpha rays deflect when they collide with a positive charge present in nucleus. Yes, so alpha rays are also positively charged, and when they strike with the positively charged nucleus, they repel and they deflect. Okay, very good. Better. Next student, आ जाओ। ये जो मॉडल आपके सामने बना है, इस मॉडल का नाम जानते हो? Yes, ma'am. Bohr's model of atom. Model of atom. So first part is in the figure, name the scientist who proposed this model of atom. That is Bohr model of atom. ठीक है, please sit. Next student, please come. Yes, beta. Can you tell me 3 postulates of the Bohr model? Ma'am, atoms consist of orbits. Electrons are present in orbits. Yes.
And what about nucleus? Nucleus is positively charged. Where is it present in this model? It is present in center. Yes, very good. देखो, Bohr model says that a nucleus, small positively charged nucleus that is present in the center, and electrons are present in these circular orbits. And when these electrons move in these orbits, they do not radiate energy. ठीक है, वो एनर्जी लूज या गेन नहीं करते हैं जब वो इन ऑर्बिट्स में मूव करते हैं. ठीक है. So these are the postulates. You can write about nucleus, you can write about electrons, and you can write about that these electrons do not radiate energy while moving. Energy while moving in the orbit. Right? How many maximum electrons can be accommodated in M orbit? So it is K, L, M, N, 1, 2, 3 sequence में orbits होते हैं, जिसमें K में maximum 2 electron हो सकते हैं, L में 8, M में 8, N में 18 electrons maximum हो सकते हैं. देख लो इसको. Try doing these questions तो आपके असाइनमेंट में है. और जो भी जिनको नहीं पता थॉमसन एंड रदरफोर्ड मॉडल, बताइए आपको हायर क्लासेस में नहीं सारे के सारे आने वाले हैं.